External Affairs Minister Sushma Swaraj has just met her Iranian counterpart Javed Zarif today. Sushma Swaraj raised the issue of 9 Indian citizens languishing in jails across Iran, including the case of stranded Indian sailor Sushil Kumar. This case was highlighted by India Today a few days ago. After India Today highlighted the plight of Sushil's family, the External Affairs Minister Sushma Swaraj, she met the family. She assured them that every possible help will be provided. In fact, Sushma Swaraj went a step ahead and assured the family that she would take it up on a personal net when she meets her Iranian counterpart. Sushil, along with 8 other sailors, have been in an Iranian jail for the past 2 years. This despite being pardoned by Iran's supreme leader. आज आपकी ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। सुशील कपूर और दूसरे जो अन्य 8 साथी जो उनकी जेल में बंद हैं, क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आया है? मैंने पिछली मीटिंग में इन्हें बताया था और आपको भी बताया था कि ईरान के विदेश मंत्री 14 को आ रहे हैं और मैं उनसे बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं कहूं कि बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। मुझे ये लगता था कि ये जब सरकारी प्रतिनिधिमंडल बैठा हो तब ये बात करनी ठीक नहीं होगी, मैं उनसे व्यक्तिगत बात करूं। तो हमने पहले ही उनसे अलग मीटिंग मांग ली थी। तो जब सरकारी वार्ता खत्म हो गई तो केवल मैं और वो एक कमरे में बैठे और वहाँ मैंने उन्हें पूरी बात विस्तार से समझाई। मैंने उन्हें कहा कि 9 भारतीय नागरिक आपके यहाँ बंदर अब्बास जेल में बंद हैं। जितनी सज़ा उन्हें मिली थी उससे ज़्यादा सज़ा वो काट चुके हैं। उन पर बहुत बड़ा जुर्माना लगा है 19 करोड़ का। मैंने कहा वो अपनी पूरी जिंदगी भी यहाँ काट लें तो भी वो पैसा दे नहीं सकते। और कायदे से आपको अगर जुर्माना लेना था तो शिप ओनर से लेना था, उसके शिप को रोक के लेना चाहिए था। वो तो आपने रोका नहीं, वो तो अपना शिप लेके चलता बना। अब वो उनके फ़ोन का भी जवाब नहीं देता। वो ये कहता कि वो समुद्र में डूबे, कहीं मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब आप ये बताइए वो क्या करें? एक ही विकल्प है, जुर्माना वो दे नहीं सकते, या तो वो पूरी जिंदगी अब ईरान में जेल में काटें और या आप करुणा करके संवेदना के साथ आप उनका फाइन वेव करें, जो जुर्माना ऊपर लगा है उसको क्षमा करें। तो मैंने कहा इसलिए मैं एक पत्र में लाई हूँ आपके लिए, मैं वो पत्र आपको देना चाहती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनके परिवार इतने गरीब हैं, वो इतने मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों के बच्चे हैं कि वो कभी भी ये जुर्माना दे नहीं पाएंगे और जुर्माना ना देने की स्थिति में क्या हमेशा जेल में पड़े रहेंगे। मैंने कहा उनमें से एक बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है, उन्होंने अस्थियां भी रख रखी हैं कि बेटा आएगा तो विसर्जन करेंगे। अब आप बताइए एक ऐसी स्थिति में मैं क्या जवाब दूं उन्हें? इसलिए मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, हमारी 3 दया याचिकाएं हमने डाली है, मैं आज आपको पत्र दे रही हूँ। आप हमारी एक दया याचिका उनसे मनवाइए और ये पूरा जुर्माना माफ करवाइए और हमारे बच्चों को छुड़वाइए। And India Today's Smita Sharma now joins me with the latest on this report. Smita, that was quite an emotional, personal and emphatic plea made by External Affairs Minister Sushma Swaraj. Do we have a response from Iran just as yet? Not really, because Gaurav, remember Javed Zarif, who was here on a day-long visit, who met Prime Minister Narendra Modi earlier prior to that meeting with Sushma Swaraj, whereas Sushma Swaraj in that interview exclusively to India Today also stated that she had an exclusive one-on-one with Javed Zarif on this issue of Indians in Iran. He is currently meeting Nitin Gadkari on road transport issues, on Chabahar port issues, but it's at 6 o'clock this evening when he will be addressing a press conference at the Iran embassy, where I do intend, of course, to take forward this issue and raise these questions to try and solicit a response from him as well. But clearly, for now, of course, Iran so far has cited its own legal processes, judicial processes. We have seen these kind of cases in several countries, Gaurav, Indians being held on various charges in other countries where India has sought humanitarian interventions. It's very interesting that 14 Estonians actually on a similar kind of a case, they have been languishing in Madras, in jails, as well as, in, of course, imprisonment and confinement of sorts for more than a year and a half. Their cases have been pending in Indian courts here. So it's Sushma Swaraj now appealing on humanitarian grounds. Clearly an India Today impact there, Gaurav. Stay with me for a moment, Smita. Now, Sushil's family, they met the External Affairs Minister. How are they reacting to Sushma Swaraj's personal and emphatic plea to Iran's Foreign Minister? Let's listen in. My colleague Kapil Sharma spoke to them.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिया है कि अब जो भारतीय ईरान की जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। हमारे साथ सुशील कपूर की माताजी और उनके परिवार के दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रेणु जी, सुषमा स्वराज जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या उन्होंने अब कहा है? उन्होंने कहा है कि उन्होंने विदेश मंत्री के आगे सारी बात रख दी है और उन्हें अपना पत्र भी दे दिया है, तो जल्दी ही वो जाके अपने सुप्रीम लीडर से बात करेंगे। जैसे भी सारी बात उनको पूरी पता नहीं थी और सारी बात रखेंगे, जैसे मतलब बताएंगे कि कैसे ठीक मतलब बाहर आ सकते हैं। किस लिए आपको यहाँ पर बुलाया था? ईरान के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी? आज उनकी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत थी, तो उसके बाद उन्होंने पहले मुझे बुलाने के लिए बोला था, लेकिन उनका इतना टाइम नहीं था उनके पास, तो उन्होंने खुद ही बात करी थी और उन्होंने अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला के मुझे यही कहा कि क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बात हुई है हमारी सारी, और वो जाके वहाँ पे बात रखेंगे। मैंने खुद पर्सनली उनसे बात करी है और उनको मतलब जल्दी ही रिलीज करने के लिए बोला है। सुशील कपूर की बहन मोनिका भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिका, अब क्या लग रहा है? कुछ होप आई है, उम्मीद आई है? मेरे को उनसे पहले भी होप थी, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होप्स हैं कि अब जल्दी हो जाएगा और सारे जो 9 मेंबर्स हैं वो जल्दी वापस आ जाएंगे। क्या आपसे क्या बात हुई? आपसे पर्सनली भी उन्होंने बातचीत की? उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने उनसे बात की है इस बारे में। सारा जो केस है वो रखा है, वो आगे जाके अपने कंट्री में ये केस रखेंगे। यहाँ से उन्होंने एक एम्बेसडर को ये फॉलो अप करने के लिए बोला है, तो जो भी होगा वो हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। जैसा भी होगा हम उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं और वो हमें बता देंगे। अच्छा, आप 2 साल से ये पूरी जो परेशानी है वो झेल रहे थे। आपके भाई हैं और भी 8 लोग हैं, वो ईरान की जेल में बंद थे। अब 2 साल बाद ये मौका आया है जब आपको उम्मीद जगी है। बिल्कुल, इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हम सबको उम्मीद है कि सारे 9 मेंबर्स जो हैं और भी जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो सब जल्दी वापस आ जाएंगे अपने कंट्रीज में। और आपको क्या उम्मीद है? 2 साल से आप परेशान थे, जगह जगह आपने चक्कर लगाए थे, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी? दरअसल अभी तक पूरी बात ही नहीं मतलब आगे आई थी कि भाई कैसे मतलब उनको रिलीज कराना है, कैसे वहां तक बात पहुंचानी है, कैसे करना है। लेकिन आज जो उन्होंने मेरे को जितनी बात बताई उससे मुझे लग रहा है कि वो पूरी बात मेरी वहां तक पहुंच गई है और जरूर उनके मन में भी कोई दया आएगी और बच्चों को सभी को माफ कर दिया जाएगा और रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए, आप बुआ हैं सुशील की, काफी परेशान थी आप भी। नहीं, देखो उम्मीद तो अब उन्हीं पूरी है। अब आगे उस ऊपर के वाले के हाथ में है, कुछ जो भी है थोड़ी ऊपर वाले की भी दया मेर चाहिए जरूर। और बाकी देखो सुषमा स्वराज जी ने भी कोशिश की है, तो अब तो है उम्मीद कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तो परिवार को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बच्चा आएगा। अब तक आप क्यों नहीं मिल पा रही थी? पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रही थी। आते तो हमेशा ही थे, मतलब कई बार आए हैं, लेकिन आगे यही कहा गया कि मतलब अभी है नहीं मैडम या जो भी है। उसके बाद जब तक आज तक के साथ हमारा संपर्क नहीं हुआ था, तब तक मतलब कोई बात आगे नहीं पहुंची। So a personal plea made by the External Affairs Minister to her Iranian counterpart. My colleague Smita Sharma with me. Smita, the family is hopeful. Now, this isn't just a formal government to government. While a government to government, process is already in place, a personal request from the External Affairs Minister, will that have added impact? Absolutely, Gaurav, because clearly when Sushma Swaraj asks for separate time for a one-on-one interaction with the Iranian foreign minister who's come into India, remember, after a historic breakthrough in the nuclear agreement that they have arrived with the West. Iran is, of course, on a global platform at the moment, and India is a country that Iran has always shared very good ties with, even when the West was in a way boycotting Iran or imposing sanctions on it because of its nuclear program. India continued to trade in oil and other, of course, products. So, Sushma Swaraj here, of course, making this intervention on a humanitarian ground, also suggesting to the Iranian foreign minister that the kind of fine that has been imposed on Sushil and the 8 other Indians who are languishing in that Iranian jail, it will be impossible, asking for a waive off, because she thinks that clearly for these Indian coming from that certain strata of society, it's impossible for these families to pay up. So she has made an impassioned plea here. India, on humanitarian grounds, we've seen that
Sarabjit case, which was taken up with Pakistan for the longest time. Narendra Modi, remember last year when 2 Indian fishermen were on the deathbed in Sri Lanka, had made a personal call to Rajapakse, and their death sentences were not only commuted, they were sent back to serve their remaining, of course, term in Chennai itself. So these humanitarian interventions at the highest levels have worked in the past on some occasions, and hope perhaps is the best thing that these people can, of course, wait on at the moment.